Hello friends, in the last lecture we have dealt with the vector quantity and we have seen few exceptions like electric current. It has got the magnitude, it has got the direction, but still it is a scalar quantity. Why? Only because it does not follow the vector algebra. Same way we have seen that anything that travels with the speed of light or nearby the speed of light, it does not follow the vector algebra and it's a scalar quantity. Now, let us deal with the types of vectors. First we will see that equal vector. इक्वल वेक्टर्स. इक्वल का मतलब ही है सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगा. बात तो वही समझ में आती है. ये केवल डिफाइन करने का एक तरीका है. बाकी इक्वल है, दो वेक्टर यदि इक्वल है, दो चीज यदि इक्वल है तो इक्वल कैसे है? सब कुछ उसका बराबर होगा. सेम वे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी equal vectors if their magnitude and directions are equal. Simple. What we see? This. Vector A, vector B. We see that the length of the arrow, which signifies the magnitude part, it is equal. They are in the same direction. So we can say vector A is equal to vector B. कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है. The second comes like parallel vectors. Two vectors are said to be parallel if the perpendicular distance between the vectors are equal. Likewise, we can say perpendicular distance means this distance. This distance is equal throughout. Again you can see this distance. This distance is equal throughout. So we will say, suppose this is called A vector, this is B vector and this is C vector. अब यहां देखने की जरूरत है, ये दोनों ना तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है. मैग्नीट्यूड में इक्वल है? नो. This is having greater magnitude than this. But they are in the same direction and the perpendicular distance remains the same. So हम लोग बोलेंगे vector A is parallel to vector B. दूसरी बार हम लोग देखेंगे
वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसका भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही है हर जगह, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग, दूसरा कंडीशन में हम लोग बोलेंगे, हम लोग देखेंगे वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी। बट अब हम लोग अगर ये बोलें वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंस दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन, it is called like vector. Now, vector B and vector C, they are parallel but oppositely directed. Their direction are opposite to each other. They are called unlike vectors. बातें समझ में आई है? पैरेलल दोनों है, A is parallel to B, B is parallel to C. पैरेलल में कोई कमी नहीं है, लेकिन दोनों का चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है, उस अनुसार वी कैन से लाइक वन इज लाइक वेक्टर एंड वन इज अनलाइक वेक्टर्स। इस चीज को थोड़ा सा देखिए आप, कोई दिक्कत ना? यहां तक अगर बात समझ में आती है, let us find it third. Third is called position vector. पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? सीधा बात है, जो वेक्टर किसी के पोजीशन को बताएगा। एनालिसिस हम लोग सीधा ऐसे कर लेंगे कि जो वेक्टर किसी पॉइंट के पोजीशन को बता रहा है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन of a point with respect to the origin of the coordinate system is called position vector. Is called position vector. What we do here is, you can see this is x, y, z origins. This is nothing but Cartesian coordinate system. 3 axes है, x, y, z, all three are perpendicular to each other. अगर हम लोग को ये पॉइंट P को लोकेट करना है, P, A1, A2, तो जो वेक्टर यहां पोजीशन से, ओरिजिन से यहां पॉइंट P को डायरेक्ट करेगा, इस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। इसको यदि हम लोग ए बोलते हैं तो वी कैन राइट ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर फॉर पी A1, A2, A3। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना?
Now let us deal with unit vector. यूनिट वेक्टर देख के ही लगता है यूनिट का मतलब होता है वन। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो जाए उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। देखो समझने में कितना आसान है, और यही सी चीज समझने में लोगों को दिक्कत होती है। द वेक्टर whose magnitude is unit or one is called unit vector. जैसे देख लीजिए, हम लोग कोई भी वेक्टर को डिनोट करते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है ये, और ए कैप ये आपको डायरेक्शन का पार्ट होता है। अब हमको सीधा सीधा बताइए, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। उसी तरीका से ये यदि वेक्टर है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, हमको मैग्नीट्यूड 1 चाहिए। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा क्या? यस। सो वी कैन राइट ए कैप वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सीधा सीधा बात है। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। जस्ट लाइक 5 by 5 is 1। इसका मैग्नीट्यूड 5 था, मान लो, उसको 5 से डिवाइड कर दिए तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, बच गया डायरेक्शन। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हम लोग इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्योर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ we have 3 basic unit vectors x, y, z. I cap is the unit vector pointing along x direction. J cap is the unit vector pointing along y direction, and k cap is the unit vector pointing along z direction. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं पोजीशन वेक्टर से आपको मिलाता हूं। मैं यहीं से पोजीशन वेक्टर किस तरह से रिलेट होता है वो देखिए। हमारे पास एक पॉइंट था P, A1, A2, A3। अगर आपको याद हो तो ऐसा लिखा था क्या मैंने? पोजीशन वेक्टर जब मैं डील कर रहा था, ये ए वेक्टर। मैंने बताया था ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है, ए वेक्टर को हम लोग लिखेंगे A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap। देखने की बात है, अगर हमको पॉइंट P तक पहुंचना है तो हमको A1 I डायरेक्शन में चलना होगा, A2 J डायरेक्शन में चलना होगा, और A3 K डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तीनों डायरेक्शन में यदि हम लोग चल दिए, हम लोग पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए हम लोग ए वेक्टर को A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप लिखेंगे। अब देखिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। यहां लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज। हमको इसका चाहिए। ये क्या हो जाएगा? A1 माइनस 0, A1 स्क्वायर
A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर होगा। हमको चाहिए इस वेक्टर का डायरेक्शन ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैं लिखूंगा A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत हो तो यहीं पर डिस्कस कर लो। क्लास के बाहर कभी भी कंफ्यूजन लेके मत जाना, इस चीज का ध्यान रहे। कभी भी क्लास के बाहर कंफ्यूजन लेके नहीं जाने का। यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहीं पे सारा काम करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, फाइन। एक छोटा सा वेक्टर और बचता है, दैट इज कॉल्ड द नल वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जिस तरह से यूनिट वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड 1 था तो यूनिट वेक्टर बोलते थे। यहां मैग्नीट्यूड 0 है तो जीरो वेक्टर बोल रहे हैं, नल वेक्टर बोल रहे हैं। द वेक्टर having magnitude 0 is called null vector. Null vector means zero vector. इस चीज का सदा ध्यान रखिए। अगर बात ये हुई है तो जब जीरो है तो उसको पढ़ने की जरूरत क्या है, जीरो मीन जीरो ना। और फिर जीरो मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर हुआ किसे। आप एक चीज जान लीजिए, समीशन ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समीशन ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग क्या करते हैं, सपोज अ मास m इज देयर, एक फोर्स इधर से F लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर से F लग रहा है। What is the total force acting here? So the resultant force Fr is equal to F minus F zero vector। यहां पर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जब कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि उसके पास नेट जीरो फोर्स लग रहा है। नेट जीरो फोर्स, जब फोर्स जैसा वर्ड बोल रहे हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और चूंकि नेट मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है तो इट टेक इट इज जीरो वेक्टर। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? कहीं भी कोई दिक्कत हो सीधा कमेंट लिखो। कभी दिक्कत नहीं होगी तुमको। कहीं भी कोई दिक्कत होता है सीधा कमेंट में लिखो and you will get the answer instantly। कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल पसंद आता है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सारी दुनिया को बता दो यस हिमांशु शेखर इज देयर। थैंक यू वेरी मच। In the next lecture we will be dealing with the addition of vectors। Thank you.